أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين واو اور از میں نہ جب قلنا ہم نے کہا لل ملائکہ لام میں نہ کے لیے ملائکہ فرشتے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اس جدو کہ تم سجدہ کرو لی آدم آدم کو، لی آدم لام میں نہ کو کے معنی میں کیا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدو فا میں نہ تو سجدو انہوں نے سجدہ کیا، یعنی سب نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا اس نے انکار بھی کیا، وستکبر اور تکبر بھی کیا، تکبر اختیار کیا، وکانا اور ہو گیا وہ من الکافرین، کافرین میں سے۔ پچھلے واقعے میں جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خلافت کی صلاحیت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں سب موجود ہیں، اور فرشتوں کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں اور جنوں کو تو ان سے بھی کم درجے کے علوم حاصل ہیں۔ اس حیثیت سے ملائکہ اس خاص حیثیت سے ملائکہ اور جنات، یعنی فرشتے اور جنات دونوں گروہوں کے پاس جتنے بھی علوم تھے ان سب کا مجموعہ انسان یعنی آدم علیہ السلام کے پاس موجود تھا، تو اس وجہ سے ان کا شرف، یعنی ان کی بڑھوتری یا ان کا فضیلت والا ہونا، یہ جنات اور انسانوں پر یہ ثابت ہو گیا۔ اب اس آیت میں یہ بات صراحتاً موجود ہے، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جو ہے استثناء کر کے، یعنی جو کہ سب نے سجدہ کیا مگر، یہ مگر کو کہتے ہیں استثناء۔ اس استثناء کر کے یہ بتلا دیا کہ فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اب ابلیس یہ فرشتوں میں نہیں ہے، یہ جنات میں سے ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم اس وقت کے تمام عقل والی مخلوقات، جس کے اندر بھی عقل تھی، ان سب کو یہ عام حکم شامل تھا، جن میں فرشتے بھی تھے اور جنات بھی سب شامل تھے، مگر اس حکم کے اندر صرف فرشتوں کا ذکر اس لیے فرشتوں کے ذکر کو کافی سمجھا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات تو اس میں بدرجہ اولا شامل ہو گئے۔ اس آیت میں جو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہے، 100، وخروا لہو سجدا، کہ وہ گر گئے، یعنی وہ سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے آگے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک اور کفر ہے، جس میں یہ امکان ہی نہیں ہے کہ کسی وقت کسی شریعت کو میں یہ جائز ہو سکے۔ اس کے علاوہ تو کوئی امکان نہیں کہ قدیم انبیاء یعنی پہلے انبیاء کے زمانے میں سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ یا معانقہ یا ہاتھ کو چومنا یا عظمت کے لیے کھڑا ہو جانا، جس طرح اس کا درجہ ہے تو اس وقت اس سجدے کا وہی درجہ تھا، یعنی بڑوں کی عظمت، بزرگوں کے سامنے یعنی آداب بجا لانا، یہ اس کا درجہ تھا۔ امام جساس رحمہ اللہ یہ مفسر گزرے ہیں، بہت مشہور، انہوں نے کتاب لکھی ہے احکام القرآن،
उसमें ये फरमाया है कि साबका अंबिया की शरीयत में बड़ों की आज़मत और तोहफे के लिए, यानी तहैया जिसको कहते हैं, जो सलाम हम करते हैं, इसके लिए सजदा मुबाह था, यानी जायज़ था। लेकिन मोहम्मदी शरीयत हम यानी हमारी शरीयत में ये मनसूख हो गया, और बड़ों की ताज़ीम के लिए सिर्फ सलाम या मुसाफे की इजाज़त दी गई। रुकू, सजदा और नमाज की शक्ल में हाथ बांधकर खड़े होने को नाजायज़ करार दिया गया। वजाहत इसकी ये है कि असल कुफर और शिरक और गैरुल्लाह की इबादत तो ईमान के उसूल के खिलाफ है, वो कभी किसी शरीयत में जायज़ नहीं हो सकते। लेकिन कुछ आमाल और अफ़ाल ऐसे हैं जो अपनी ज़ात के एतबार से तो शिरक और कुफर नहीं है, लेकिन लोगों की जहालत और गफलत की वजह से वो कुफर और शिरक के आमाल का ज़रिया बन सकते हैं। ऐसे अफ़ाल को तमाम साबका अंबिया की शरीयतों में मुतलकन यानी बिल्कुल मना नहीं किया गया, बल्कि उनको शिरक का ज़रिया बनाने से रोका गया। जैसे जानदारों की तस्वीर बनाना और इस्तेमाल करना, ये अपनी ज़ात के एतबार से ये कुफर और शिरक नहीं है, और ये पिछली शरीयतों में जायज़ था, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में सूरह सबा आयत नंबर 13 में अल्लाह ने बयान फरमाया, यामलून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमासील, यानी जिन्नात उनके लिए बड़ी मेहराबें बनाया करते थे और तस्वीरें बनाया करते थे। इसी तरह जो ताज़ीमी सजदा है, जैसे सलाम हम ताज़ीम के लिए करते हैं, तो ये ताज़ीमी सजदा पिछली शरीयतों में जायज़ था, लेकिन आखिरकार लोगों की जहालत से ये चीज़ें शिरक और बुत परस्ती का ज़रिया बन गई, और इसी रास्ते से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के दीन और शरीयत में तहरीफ होती गई, यानी तब्दीलियां होती गई, और फिर दूसरे अम्बिया और दूसरी शरीयतों ने आकर उसको मिटाया। यानी एक शरीयत वाले जो, वो शरीयत पुरानी हो गई, तो वो कुफर और शिरक की तरफ या बुतों की तरफ चले गए। फिर जब नई शरीयत आई तो वो उसने पहले को मनसूख कर दिया, गलत करार दे दिया। लेकिन हमारी शरीयत मोहम्मदी जो है, ये क्योंकि हमेशा और अबदी है, यानी ये क़यामत तक बाकी रहनी है, इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत ख़त्म हो गई, और आपकी शरीयत आखिरी शरीयत बन गई। इसलिए इसको मसख या तहरीफ, यानी इसको मिटाना या इसमें तब्दीली करना, इससे बचाने के लिए ऐसे सुराखों को भी बंद कर दिया गया जहां से शिरक और बुत परस्ती आ सकती थी। इसी सिलसिले में वो तमाम चीज़ें इस शरीयत में हराम करार दे दी गई हैं जो किसी ज़माने में शिरक और बुत परस्ती का जरिया बनी थी। तस्वीर साजी और इसके इस्तेमाल को इस वजह से हराम करार दिया गया कि सईदा और ता इसी वजह से हराम करार दिया गया, और सईदा ताजीमी जो है वो भी इसी वजह से हराम हुआ। और इसी तरह ऐसे औकात में नमाज पढ़ने को भी हराम कर दिया गया जिसमें मुशरिक और काफिर अपने माबूदों की इबादत किया करते थे, कि ज़ाहरी तौर पर ये किसी भी वक़्त ये मुताबिकत जो है वो शरीयत का ज़रिया ना बन जाए, यानी शिरक का ज़रिया ना बन जाए, कि उन उन जैसा ना हो जाए। मुशाबत से बचाने के लिए उसको भी मना किया गया। सही मुस्लिम की हदीस है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो उस वक़्त जो आका और ग़ुलाम का सिलसिला चलता था, तो उसमें आकाओं को ये हुक्म दिया था कि अपने ग़ुलामों को अबद यानी अपना बंदा, अबद माना बंदा, के अबद कहकर ना पुकारें, जो गुलाम के माना में आता है। और गुलामों को ये हुक्म दिया कि वो अपने आकाओं को रब ना कहें, क्योंकि रब का माना होता है लफ्जी माना पालना, पालने वाला, और गुलाम का बंदे का माना होता है गुलाम। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मना नहीं होना चाहिए था, मगर सिर्फ इसलिए कि उसमें शिरक का एक वहम होता है। किसी वक़्त जहालत से यही अल्फाज आकाओं की पूजा का दरवाज़ा ना खोल दें।
इसलिए इन अल्फाज के इस्तेमाल से भी रोक दिया गया। तो खुलासा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का सजदा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिदैन और भाइयों का सजदा जो कुरान में बयान किया गया है, ये सजदा सजदे वाला सजदा नहीं है, बल्कि ये ताज़ीमी सजदा था। जैसे कभी कई लोग जो हैं वो जापानी वगैरह वो झुकते हैं दूसरों के आगे, वो रुकू की तरह, तो वो ताज़ीम के लिए है। जो उनकी शरीयत में सलाम, मुसाफा, दस्त बोसी यानी हाथों को चूमने का दर्जा रखता था और जायज था, लेकिन शरीयत मोहम्मदी जो है उसको, क्योंकि शिरक और कुफर के शुबे से भी पाक रखना था, इसलिए इस शरीयत में अल्लाह ताला के अलावा किसी को ताज़ीम के मकसद से भी सजदा या रुकू की शक्ल में झुकना भी जायज नहीं रखा गया। बाज उलमा ने फरमाया कि नमाज के अंदर जो कि असल इबादत है, इसमें चार तरह के अफ़ाल हैं। नंबर एक खड़ा होना, नंबर दो बैठना, नंबर तीन रुकू करना, नंबर चार सजदा करना। इनमें से दो यानी खड़ा होना और बैठना, ये तो ऐसे काम है जो आदत के तौर पे इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए हमेशा करता है और इबादत में नमाज के अंदर ये किए जाते हैं। लेकिन रकू और सजदा दो ऐसे फेल हैं जो इंसान आदतन नहीं करता, वो इबादत के साथ ही खास हैं। इसलिए इन इन दोनों को यानी रुकू और सजदे वाली हालत को शरीयत मोहम्मदिया में इबादत ही का हुक्म देकर गैरुल्लाह के लिए इसको मना कर दिया गया। अब यहाँ एक सवाल ये बाकी रह जाता है कि ये ताज़ीमी सजदे का जवाब तो कुरान की मज़कूरा आयत से साबित है, तो शरीयत मोहम्मदिया में इसको मनसूख किस दलील से किया गया? मनसूख मैंने इसको मना करना। इसका जवाब यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतवातर अहादीस जो है वो बहुत मशहूर है, उसमें सईद ताज़ीमी का हराम होना साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अगर मैं गैरुल्लाह के लिए सईद ताज़ीमी को जायज़ करार देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे, मगर क्योंकि इस शरीयत में सजदा ताज़ीम वैसे ही हराम है, इसलिए ये किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। अब इससे एक मसला भी साबित होता है, वो मसला ये है कि इबलीस का जो कुफर है, वो इबलीस ने जो इनकार किया उसका कुफर, वो सिर्फ ये नहीं है कि उसने अमली तौर पर वो सजदा नहीं किया तो उसकी वजह से वो काफिर हो गया, बल्कि क्योंकि फर्ज को, जो फर्ज चीज होती है उसको अमली तौर पर छोड़ देना, शरीयत में इसको कुफर नहीं कहते, इसको फिस्क और गुनाह कहते हैं। लेकिन इबलीस के कुफर का असल वजह जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म का मुकाबला करना था कि आपने जिसको सजदा करने का मुझे हुक्म दिया है, यानी आदम अलैहिस्सलाम को, वो इस काबिल नहीं कि मैं उसको सजदा करूं। तो ये मुकाबला अल्लाह ताला के साथ ये बिला शुबह कुफर है, इसलिए इबलीस को काफिर करार दिया गया है। अब इबलीस को इस अमल से पहले ताऊसुल मलाइका भी कहा जाता था। ताऊस मतलब जो सबसे खूबसूरत, मोर जैसे, मोर, मोर को कहते हैं कि मोर खूबसूरत परिंदा है सारे परिंदों में से, तो इसको पहले ताऊसुल मलाइका कहा जाता था। लेकिन जब इससे ये हरकत सादिर हुई तो इसके बाद ये काफरों में शुमार हो गया। लेकिन अब ये ताऊसुल मलाइका यानी फरिश्तों का मोर या खूबसूरत, यानी फरिश्तों में से सबसे खूबसूरत, ये लफ्ज़ अब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होता है कि वो फरिश्तों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो तफसीर, अच्छा दूसरा मसला, ये एक और मसला भी है कि इबलीस जो है इल्म और मार्फत में ये मकाम रखता था, ये तो बात हो गई कि उसको ताउसुल मलाइका कहा जाता था, फिर उससे ये हरकत सादिर हुई। बाज़ उलमा ने ये फरमाया कि उसके तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला ने
उससे अपनी दी हुई मार्फत और इल्म की दौलत छीन ली थी, इसलिए वो ऐसी जहालत का काम कर बैठा। यानी अगर वो इल्म और मार्फत उसको वो हासिल रहती तो फिर वो काम ना करता। बाद बाद ने फरमाया कि हुब्बे जा, यानी मर्तबे का मर्तबा, रुतबे से मोहब्बत, या खुद पसंदी यानी अपने आप को बेहतर समझना, ये इस बला में वो मुब्तला कर दिया गया था। बा बाद जगह तफसीर रूहुल मानी में लिखा हुआ है, जिसका हासिल ये है कि बाज़ औक़ात किसी गुनाह के वबाल से, यानी कोई गुनाह किया है तो उसके वबाल की वजह से हक की तायीद इंसान का साथ छोड़ देती है, तो उसकी हर कोशिश और अमल उसको गुमराही की तरफ ले जाती है। तो तफसीर उल मानी में लिखा है कि इससे भी ये बात साबित है कि इंसान का ईमान वही मोतबर है जो उम्र के आखिर और जो आखरत की मंजिलें हैं, यानी जब सकरातुल मौत आना होता है, जहाँ से आखरत की मंजिलें शुरू होती हैं, तो उसकी जो इब्तिदा है, बिल्कुल स्टार्ट है, उस वक्त जो है वो ईमान अगर उसके पास है तो वो मोतबर है, वो आखिरत तक साथ जाएगा। अगर ऐसी अगर ऐसी कोई हालत मौजूद नहीं है, कोई मौत की हालत भी नहीं है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, जिंदगी गुजार रहा है, तो इस हालत में जो ईमान और अमल और इल्म वगैरह है, ये इसका एतबार उसी वक्त होगा जब ये आखिर तक बाकी रहेंगे। अब वो आखिरत वाले का असल एतबार है। तो इसलिए इस इल्म और मार्फत वगैरह पर किसी को गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरूर की वजह से अल्लाह ताला उसकी ये नेमत उससे छीन भी सकते हैं, जिस तरह के इबलीस से छीनी गई।